बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले हम एक ओवरव्यू ले लेते हैं डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। द नंबर ऑफ द फॉर्म a प्लस b आयोटा आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। where a and b both are real. Now a is called real part of this complex number and b is called imaginary part of this complex number. Real part is a and imaginary part is b. Both these parts are itself real numbers. A is a real number, b is a real number, but a is called real part and b is called imaginary part of the complex number. Now let us start question number 2. Exercise 1.1 question number 2 is simplify. First part, 4 minus iota plus 5 plus 5 iota. टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करने के लिए हम उनके करस्पॉन्डिंग रियल पार्ट्स को आपस में ऐड कर देते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स आपस में ऐड होते हैं। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। 4 माइनस आयोटा प्लस 5 प्लस 5 आयोटा। अब रियल पार्ट को रियल पार्ट में ऐड कर दें। 4 प्लस 5 एंड माइनस आयोटा प्लस 5 आयोटा। 4 plus 5 is 9 and minus iota plus 5 iota will be 4 iota. So this will be the answer. Now second part of this question number 2 is 7 minus 6 iota minus 5 minus 6 iota. हम सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे। 7 minus 6 iota minus 5 and this minus will make this minus sign minus as plus 6 iota. 7 minus 5 and minus 6 iota plus 6 iota. Minus 6 iota will cancel plus 6 iota. The answer will be 2. Now next part of this question, part number 3. Minus 2 plus 8 iota minus 7 plus 3 iota. ब्रैकेट्स ओपन करेंगे। माइनस 2 प्लस 8 आयोटा माइनस 7 माइनस 3 आयोटा। क्योंकि ये माइनस साइन इस प्लस को माइनस बना देगी जब ब्रैकेट ओपन होगी तो माइनस 2 माइनस 7 प्लस 8 आयोटा minus 3 iota. Minus 2 minus 7 will be minus 9 and plus 8 iota minus 3 iota will be 5 iota. Now coming to next part, part number 4. 4 minus 2 iota minus 5 minus 2 iota. This will become 4 minus 2 iota minus 5 plus 2 iota.
combining the like terms, 4 minus 5 minus 2 iota plus 2 iota, 4 minus 5 will be minus 1 और minus 2 iota plus 2 iota से cancel हो जाएगा. So this will be the answer, minus 1. अब इसके बाद हमारे पास मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. 2 plus 4 iota multiplied by 1 plus 2 iota. इसको हम वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जिस तरह हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करते हैं. फर्स्ट 2 will be multiplied with both these numbers. 2 multiplied by 1, it will be 2. Then 2 will be multiplied with 2 iota, it will become 4 iota. अब 2 को मल्टीप्लाई करने के बाद हम 4 iota को नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे. सबसे पहले 4 iota 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 4 iota प्लस 4 iota विल बी मल्टीप्लाइड विथ 2 iota, ये बन जाएगा 8 iota स्क्वायर. इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. 2 plus 4 iota plus 4 iota will become 8 iota plus 8 iota square will be negative 1. 8 iota square is equal to negative 1, इसलिए 8 times negative 1 will be negative 8. हम लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप 2 plus 8 iota minus 8. 2 minus 8 will be combined plus 8 iota. 2 minus 8 will be minus 6 plus 8 iota. This will be the answer. Next part बिल्कुल similar है, that will be solved similarly. अब part number 7 देखिए. minus 8 iota multiplied by 2 minus 2 iota. इसको मल्टीप्लाई करेंगे. minus 8 iota will be first multiplied with 2 and then with minus 2 iota. तो ये बन जाएगा minus 16 iota और minus 8 iota multiplied by negative 2 iota, इससे हमें हासिल होगा plus 16 iota squared. So the next step will be minus 16 iota plus 16 multiplied by negative 1, क्योंकि iota square negative 1 की इक्वल होता है. minus 16 iota minus 16, या हम इसको यूँ भी लिख सकते हैं minus 16 iota. This will be the answer. Next part number 8. 3 plus 2 iota whole squared. 3 plus 2 iota whole square can be written as 3 plus 2 iota multiplied by 3 plus 2 iota. क्योंकि जब हम किसी नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट करते हैं तो नंबर ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाय इटसेल्फ. किसी नंबर को अपने साथ मल्टीप्लाई करने से उसका स्क्वायर आता है, इसलिए 3 plus 2 iota होल स्क्वायर इक्वल होगा 3 plus 2 iota मल्टीप्लाइड बाय 3 plus 2 iota. हम इसको वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व किया है. फर्स्ट 3 विल बी मल्टीप्लाइड विद 3 plus 2 iota, उसके बाद 2 iota मल्टीप्लाई होगा नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स के साथ. 9, 3 multiplied by 3 will become 9. Then 3 multiplied by 2 iota will become 6 iota. इसके बाद हम 2 iota को मल्टीप्लाई करेंगे 3 के साथ, ये बन जाएगा 6 iota
और 2 iota multiplied by 2 iota will become 4 iota squared. 9 plus 12 iota, क्योंकि 6 iota plus 6 iota 12 iota आ जाएगा, और 4 मल्टीप्लाई बाय -1, क्योंकि iota स्क्वायर -1 की इक्वल होगा. 9 plus 12 iota -4. अब 9 और -4 को हम कंबाइन कर देंगे. 9 minus 4 plus 12 iota. 9 minus 4 is equal to 5. 5 plus 12 iota. This will be the answer. आइए अब इस क्वेश्चन का 10th पार्ट करते हैं. -5 minus 3 iota whole squared. अगेन ये -5 minus 3 iota का स्क्वायर है, तो हम -5 minus 3 iota को -5 minus 3 iota के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे. -5 मल्टीप्लाई बाय -5 ये बन जाएगा 25, और -5 मल्टीप्लाइड बाय -3 iota ये बन जाएगा 15 iota. इसके बाद -3 iota विल बी मल्टीप्लाइड विद -5, ये हमारे पास आ जाएगा 15 iota प्लस 15 iota. देन -3 iota विल बी मल्टीप्लाइड विद -3 iota, तो हमें हासिल होगा प्लस 9 iota स्क्वायर. हम सिंप्लीफाई करेंगे. 25 प्लस 15 iota प्लस 15 iota विल बिकम 13 iota, और 9 मल्टीप्लाइड बाय iota स्क्वायर हो जाएगा -1, क्योंकि iota स्क्वायर -1 होता है. 25 प्लस 30 iota -9. 25 और -9 को कंबाइन करेंगे. 25 minus 9 plus 30 iota. 25 minus 9 will be 16 plus 30 iota. This will be the answer. Now 11th part of this question. 1 plus 2 square root iota multiplied by 1 minus square root 3 iota. इस क्वेश्चन को भी हम प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे. पहले 1 नेक्स्ट ब्रैकेट की दोनों टर्म्स से मल्टीप्लाई होगा. 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बी 1, और फिर 1 को हम -3 स्क्वायर रूट आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये -3 स्क्वायर रूट आयोटा आ जाएगा. फिर सेकेंडली हम 2 स्क्वायर रूट आयोटा को 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट 2 आयोटा, और इसके बाद हम 2 स्क्वायर रूट आयोटा को माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, -6 स्क्वायर रूट आयोटा स्क्वायर. हमारे पास हासिल होगा 1 माइनस 3 स्क्वायर रूट आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट आयोटा माइनस 6 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय -1, बिकॉज आयोटा स्क्वायर इज -1. अब हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको. 1 -3 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाइड, तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं कि आयोटा इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे. 1 प्लस आयोटा विल बी टेकन आउट कॉमन फ्रॉम दीज टू टर्म्स. ये हमें हासिल होगा 2 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट, क्योंकि पॉजिटिव टर्म हम पहले लिखते हैं, 2 स्क्वायर रूट पहले आ जाएगा, 3 स्क्वायर रूट हम बाद में लिख लेंगे, प्लस स्क्वायर रूट 6, क्योंकि
minus square root 6 multiplied by minus 1 will be plus 6 square root. हम like terms combine करेंगे. 1 और 6 square root like terms हैं. 1 plus 6 square root plus iota multiplied by square root 2 minus square root 3. This will be the answer. इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर रूट 2 माइनस आयोटा. यहाँ पे हम आइडेंटिटी भी अप्लाई कर सकते हैं. अलजेब्रा में हमने आइडेंटिटी पढ़ी है a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. तो इस फार्मूला के मुताबिक ये हमारे पास a है, ये b है. a प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय a माइनस बी. तो अप्लाइंग दिस आइडेंटिटी वी कैन राइट a स्क्वायर. a स्क्वायर का मतलब यहाँ पे होगा स्क्वायर रूट 2 होल स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर. स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे. द आंसर विल बी 2 माइनस -1, क्योंकि आयोटा स्क्वायर को हम -1 लिखेंगे. तो ये बन जाएगा 2 + 1 विच इज़ इक्वल टू 3 एंड दिस इज़ द आंसर.